Good morning, everyone. In the previous lecture, we understood the vertical balance sheet, that is, sources of funds and application of the funds. Balance sheet talks about, you can also see balance sheet from the point of the funds, sources of funds, owners' funds, and borrowed fund. Right? That is, owners' funds, that is capital plus reserves minus losses. हम इफ यू रिमेंबर हम पार्टनरशिप में भी वैसे करते हैं, वी एड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स विल माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, राइट? सो owners funds is a capital, it can be equity capital, it can be preference capital, right? Plus reserves minus losses if any. And there can be borrowed funds, loans, debentures, right, on liability side. So that is, right, your borrowed funds. So total, right, sources of funds is owner's fund plus borrowed fund. And then how those funds have been applied, like applied for fixed assets, applied for investments, and being used as a working capital. The remaining funds are being used as a working capital, that is current assets minus current liabilities is working capital. Sources of funds should tally with application of the fund. Okay? Then the second, right, statement that we are understanding is statement of profit and loss. Vertical फॉर्मेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने आपको समझाया था टी फॉर्मेट में. यू स्टार्ट्स विथ नेट सेल्स, देन यू एड क्लोजिंग स्टॉक, you subtract opening stock, you subtract purchases, you subtract other direct expenses to get a gross profit, right? तो अब इसको ही try to understand हमें लिखना कैसे है, right? How to find out gross profit? हम नेट सेल्स से स्टार्ट करेंगे. नेट सेल्स लेस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. एंड हाउ टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. सो दैट इज COGS. सो सेल्स से अगर मैं COGS माइनस करता तो मुझे क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा. ठीक है? सो ग्रॉस प्रॉफिट. देन before you find out net profit, you have to find out operating profit. Gross profit and net profit के बीच में operating profit है. For that purpose, gross profit से मुझे operating expenses minus करने होंगे. There are 3 types, और आप ज्यादा से ज्यादा 4 टाइप्स बोल सकते हैं operating expenses के. All administrative expense, all administrative expenses. Second, all selling and distribution expenses. And third, all finance expenses, finance cost, interest, bank charges, etc. And obviously you will also deduct depreciation, amortization to find out operating profit. ठीक है? Then operating profit से आपको net profit ढूंढना है. For that purpose, non-operating incomes you will add dividend received, income received, interest received, right? Profit on sale of fixed assets, all those you will add, and you will subtract non-operating expenses like loss by fire, loss by theft, right? Then loss on sale of fixed asset, loss on sale of investments. वो सब चीजें नॉन ऑपरेटिंग चीज है, हम उसको माइनस करेंगे तो हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा बिफोर टैक्स. PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. Then you will minus provision for tax, provision for tax. Then you will get PAT, profit or net profit after tax. यही था वो, if you remember. ठीक है? So इसी फॉर्मेट को हमने ऐसे लिखा है, nothing else. आगे, ठीक है? Net sales minus COGS is gross profit, minus operating expense is your operating profit, plus non-operating income minus non-operating expense, you will get, right, profit before tax. Then you will subtract provision for tax, you will get profit after tax. ठीक है? नेक्स्ट, इसके 2 क्वेश्चंस थे जो हमें करने थे. लेट्स स्टार्ट एवरीवन. पेज नंबर कोई मुझे बोलेगा?
Can anyone tell me the page number? ये वर्टिकल बैलेंस शीट था, ये वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट है. परफेक्ट. Okay, they have given you, right? Good. Page number 349. Yes, page number 349. ध्यान देना. What is the question? Convert the following trading and profit loss account into vertical income statement. Let's start. जिनको कंपनी अकाउंट्स नहीं आएगा तो उनको ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. और आपको खाली टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करने, कोई दूसरे क्वेश्चंस नहीं करने. देखो, हमें वर्टिकल पी एंड एल करना है. हमें वर्टिकल पी एंड एल करना है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. क्या दिया है ध्यान देना. सेल्स दिया है, क्लोजिंग स्टॉक है. ठीक है, ओके. मतलब इसको कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे बोल रहे हो क्या? नहीं, उन्होंने लिखा है ना. अगर आप क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट देखोगे ना तो आपको समझेगा कि 4 क्वेश्चंस होने वाले हैं, उसमें से 2 क्वेश्चंस करने आपको. देखते हैं, नो इश्यूज, बट सिंपल चैप्टर है, डिफिकल्ट नहीं है. ध्यान देना. सेल्स दिया है, आई विल स्टार्ट विथ सेल्स. फिर मैं माइनस करूंगा सीओजीएस. मैं माइनस करूंगा सीओजीएस. ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स एंड जीपी छोड़ के, सेल्स एंड जीपी छोड़ के बाकी सब सीओजीएस रहेगा. सिंपल वर्ड्स में, बिकॉज हमें सेल्स से कुछ तो माइनस करना है तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलना चाहिए. सेल्स से हमें सीओजीएस माइनस करना है तो हमें जीपी मिलना चाहिए. मतलब 11 लाख से हमें कुछ तो माइनस करना है तो 2 लाख मिलना चाहिए. मतलब हमें क्या क्या माइनस करना होगा? अदर देन सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट, बाकी जो कुछ भी रहेगा वो सीओजीएस रहेगा. इन सिंपल वर्ड्स. ठीक है, सो ध्यान देना क्या बोल रहा हूं. ओपनिंग स्टॉक है, परचेसेस है, वेजेस एंड क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है. तो इन सबको हम माइनस करेंगे, इनका नेट को माइनस करेंगे. ठीक है, ध्यान देना. फिर हमें जीपी मिल जाएगा. फिर हमें जीपी मिल गया बराबर. उससे हम माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंस ऑपरेटिंग, सेलिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग, राइट, फाइनेंस एक्सपेंस आल्सो ऑपरेटिंग, सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस है. तो आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम. नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ही नहीं कुछ, माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कुछ है ही नहीं. तो आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. टैक्स कुछ भी नहीं है, माइनस टैक्स 0, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. लेट्स स्टार्ट. लिखो इनकम स्टेटमेंट इन द बुक्स ऑफ डैश डैश डैश. इनकम स्टेटमेंट. अरे आंसर ऑलरेडी पता होता है क्वेश्चन में, खाली उसको प्रेजेंट करना है. इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड. फॉर द ईयर एंडेड, ध्यान देना. ठीक है, पर्टिकुलर्स रुपीज. सबसे पहले नेट सेल्स. सेल्स 11 lakhs less sales return 0. $11 lakhs. Then less cost of goods sold COGS
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेस आएगा, वेजेस आएगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लिखो यार, ओपनिंग स्टॉक 3,50,000, देन purchases 7 lakhs, एड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या है? वेजेस 50,000, कितना कह रहे हैं? सब टोटल कितनी आ गई? सब टोटल कितनी आ गई? 10 lakhs, 11 lakhs। इनर कॉलम में लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 2 lakhs का क्लोजिंग स्टॉक है। Therefore, cost of goods sold is 9 lakhs. Now you can see your gross profit ऊपर भी 2 लाख था, यहाँ पे भी 2 लाख है। Therefore, gross profit टू lakhs. ग्रॉस प्रॉफिट इज 2 lakhs। दिखा ग्रॉस प्रॉफिट 2 lakhs? अरे वही आएगा, आंसर वही है, प्रेजेंटेशन चेंज हुआ है, नथिंग एल्स। So you started with net sales minus COGS, cost of goods sold, is gross profit। T फॉर्मेट को हम प्लस माइनस में लिख रहे हैं। अब ऐड ऑपरेटिंग प्रॉफिट ढूंढना है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऐड नहीं सॉरी माइनस, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस उसमें 1 एडमिन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दैट इज ऑफिस एक्सपेंस वगैरह, उसमें आ जाएंगे 1 लाख। सेकंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट्स, कमीशन पेड टू सेल्स टीम, राइट, ये सब उसमें आ जाएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस 50,000। थर्ड फाइनेंस एक्सपेंसेस 20,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन वगैरह उन्होंने कुछ लिखा नहीं है आगे। सो इट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,70,000। सो 30,000 को बोला जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लिखो, जीरो है तो भी लिखो, आपको याद रहेगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कुछ है, P&L के रेट में कुछ है नहीं, माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, P&L के डेबिट में कुछ है, माइनस करने के लिए नहीं। Therefore, profit before tax is 30,000 less provision for tax। P&L में कोई टैक्स दिख रहा है? जीरो। पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
30. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 30. समझा? वही आंसर आया होगा. देखो आपका यहाँ पे भी प्रॉफिट 30,000 होने के बाद यस लिखो सो दैट वी कैन मूव अहेड. दिस इज फर्स्ट पार्ट. ये ट्रेडिंग का पार्ट है एक्चुअली. दिस इज ट्रेडिंग पार्ट ग्रॉस प्रॉफिट तक. एंड उसके नीचे का P&L का पार्ट है. उसके नीचे का P&L का पार्ट है. आगे लिखो जल्दी. ये पहले ट्रेडिंग का पार्ट ठीक से लिखो. यू ऑलरेडी नो द आंसर. आपको आंसर पता है. क्वेश्चन में आंसर दिया है. दे ऑलरेडी गिवन यू आंसर. खाली प्रेजेंटेशन करना है. होने के बाद यस लिखो सो दैट वी कैन मूव अहेड. प्लीज मेक इट फास्ट. मेक इट फास्ट. नेक्स्ट आगे. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. यस देखो ध्यान देना. ठीक है एवरीवन. अगेन हमें वर्टिकल P&L में कन्वर्ट करना है. ठीक है. स्टार्ट विथ सेल्स माइनस COGS. माइनस COGS 12 लाख से COGS माइनस करो तो आपको 3 लाख मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट. फिर माइनस राइट ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए माइनस ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस एंड फाइनेंस एक्सपेंस. आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा. एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम 0 माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 0. तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा जो 45,000 होगा. लेस प्रोविजन फॉर टैक्स 0. देयरफॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 45,000. चलो लिखो. Therefore, particulars rupees. इधर ही खत्म कर दो. इधर ही समझ के करो. लिखो नेट सेल्स. स्टार्ट विथ नेट सेल्स. इनकम से स्टार्ट करो. नेट सेल्स से विच इज 12 lakhs. लेस COGS. मैं डायरेक्टली शॉर्टकट लिख रहा हूं. इन डिटेल नहीं लिखूंगा. ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2 lakhs plus purchases of 9 lakhs plus other direct expense wages of 1 lakh minus closing stock of 3 lakhs.
क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करो टू फाइंड आउट COGS. So what is COGS? Opening stock plus purchase plus other direct expense minus closing stock. So 11 lakhs, 12 lakhs minus 3 lakhs, 9 lakhs. COGS 9 lakhs है, इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड सेल हुए उनकी कॉस्ट 9 लाख है और उनकी सेलिंग प्राइस 12 लाख है. जो सेल हुआ है उसकी कॉस्ट 9 लाख है और उसकी सेलिंग प्राइस 12 लाख है. मतलब प्रॉफिट कितना हुआ सेल्स पे? वो ग्रॉस प्रॉफिट है 3 लाख. देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट. टू फाइंड आउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस operating expenses. You will subtract administrative expenses. You will subtract, right? ठीक है, ध्यान दें. Operating expenses, which is 1,25,000. Selling and selling expenses are operating expense. Finance expenses is also operating expense. So operating expenses is सब total आ गई 2,25,000, 2,55,000 शायद से. Therefore operating profit. ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ ₹45,000. एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, P&L के क्रेडिट पे जो अदर इनकम होता है ना वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है, लेस ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. Therefore, profit before tax (PBT), profit before tax 45,000, less provision for tax 0. Therefore, PAT, profit after tax, जो आपको P&L में लिखेगा. टैली हो रहा है? यस. हो गया तो बोलो, जल्दी लिखो स्पीड में. मेंटेन द स्पीड. सिंपल है. और रियल लाइफ में आप ऐसे टाइप के प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे, ऐसे टाइप के देखोगे. देन नंबर 4 डन. आगे नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड. हमने दो चीजें सर से की, वर्टिकल बैलेंस शीट, वर्टिकल P&L. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द 3 थिंग्स. The tools to analyze the financial statements. So जो आपका P&L है, जो आपकी बैलेंस शीट है, उसको एनालाइज कैसे करेंगे, उसको समझेंगे कैसे, हाउ विल वी इंटरप्रेट द सेम. तो उसके लिए देयर आर 3 टूल्स. द फर्स्ट टूल इज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या? We will prepare financial statement, that is balance sheet and profit loss account in a comparative format. मतलब कैसे? हम करंट ईयर के फिगर्स के साथ प्रीवियस ईयर के फिगर्स भी लिखेंगे. एग्जाम्पल, सपोज
Suppose this is I can show you some balance sheet. किसकी बैलेंस शीट? ओके, लेट मी, एक सेकेंड ना. If possible, I can show you here. Safari does not support sometimes. Yeah, let me. इन्वेस्टर रिलेशन में गए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. यहाँ पे आएगा, देखो, एनुअल रिपोर्ट फॉर 1920. ठीक है, एनुअल रिपोर्ट फॉर 1920 देखते हैं. आई कैन शो यू. आपको समझेगा व्हाट डू यू मीन कंपैरेटिव. एक सेकंड. अरे यार, नेट बहुत स्लो चल रहा है. जस्ट ए सेकंड. अच्छा, ओके. आई विल ऑल्सो ट्राई दिस. देखते हैं, बच्चे बोल रहे सर ये ट्राई करो. सर्वर स्टॉप रिस्पॉन्डिंग. दूसरे कोई? टाटा. लेट मी फाइंड. नीचे कहाँ पे तो रहेगा? टाटा सन्स, टाटा सन्स.
इन्वेस्टर्स अबाउट रहेगा यहाँ पे। ये थोड़े स्पीड में चल रही है वेबसाइट। Welcome to the investors page. Let me check. Financial reports are in businesses. Okay. वर्टिकल स्टील वगैरह सब है। एक्चुअली मुझे कंसोलिडेटेड चाहिए था और चेकिंग कंसोलिडेटेड तो रीजन ये। ओके सपोज आईटी में जाते हैं, आई स्टिल डाउट यार। बाकी सब इंफॉर्मेशन है। आई एम ट्राइंग टू डाउनलोड द फाइनेंशियल्स। एक सेकंड। ऐसे कहाँ पे ढूंढना पड़ेगा? कितनी इतने इनकी कितनी क्लियरली वेबसाइट पे है। हाँ देखो, ठीक है, ध्यान देना। राइट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, दिस इज देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये उनका एनुअल रिपोर्ट है आईटीसी का। ठीक है, इंड्यूरिंग द वैल्यूज नेशन फर्स्ट सब सात बड़े आईटीसी लिमिटेड रिपोर्ट एंड अकाउंट्स 2020। ठीक है, ध्यान देना। पूरा डाउनलोड होने का या ओके। हमें चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, यस, बैलेंस शीट। डायरेक्टली क्लिक करने पे वो लिंक है वहां पे, मैं बैलेंस शीट में गया। ठीक है, देखो क्या क्या है स्टैंड उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या क्या है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ध्यान देना। ये उनकी इंडेक्स है, राइट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, उनके कमिटीज वगैरह सब डिटेल्स रहेंगे। क्या क्या है? बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मैंने बोला था, राइट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये चार ये मैंने लिख के दिया था। इफ यू रिमेंबर, इफ यू कैन रिमेंबर, मैंने आपको लिख के दिया था। चेक करो, आपका चेक करो एक बार, लिख के दिया था मैंने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, चेक करो, इनिशियल में लिख के दिया था मैंने जहां से हमने चैप्टर किया। सेकंड पॉइंट ही था मेरा, क्या क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी इंक्लूड्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, बैलेंस शीट जिसको पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन द इक्विटी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। तो वही यही तो है, यही तो है बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट्स। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, एक्चुअली ये क्या होता है?
The signing auditor, the auditor who signs the balance sheet, who audits the books of accounts, उसका यहाँ पे रिपोर्ट दिखेगा आपको, ठीक है, उसका रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, नथिंग एल्स। मतलब ये चीजें आ जाती है आपके नोट्स टू अकाउंट्स तक, राइट, इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर नीचे आपको और इंफॉर्मेशन रहेगी, राइट, ऑल दीज आर द लाइक बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट रिक्वायर्ड बाय कंपनीज एक्ट, बिजनेस अपडेट उनके, क्रिएटिंग इंड्यूरिंग इंस्टीट्यूशंस, अवार्ड्स वगैरह उनके, उन सब कंपनीज की इंफॉर्मेशन रहेगी, ध्यान देना। ये बाकी सब आपको इफ यू गो थ्रू इट यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मुझे वो चीजें नहीं दिखानी आपको। दे आर इनटू एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, राइट, सर्विसेज, आईटीसी, होटल इंडस्ट्रीज वगैरह में, राइट ना। सो ये सब चीजें, राइट, दे प्रोवाइड। आप कंपनी के रिलेटेड सब चीजें आपको मिलेगी। मैं आपको बैलेंस शीट पे लेके जा रहा हूं। बैलेंस शीट देखो, अब उनकी बैलेंस शीट कैसे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। दे हैव रिटन असेट्स फर्स्ट, उन्होंने पहले असेट्स लिखे, और नाउ यू कैन सी दिस इज नोट नंबर, दिस इज असेट्स, मतलब पर्टिकुलर कॉलम, नोट नंबर एज एट 31 मार्च 2020 एंड उसके कंपैरेटिव में उन्होंने प्रीवियस ईयर लिखा, दिख रहा है। तो ये करंट ईयर के वैल्यूज है, एक कॉलम में करंट ईयर और एक कॉलम में प्रीवियस ईयर, ये कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया। सो बैलेंस शीट कंपैरेटिव में की है, मतलब करंट ईयर के फिगर्स के साथ प्रीवियस ईयर के फिगर्स है। मतलब आपको देख के समझ में आएगा कि पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ऑल फिगर्स आर इन क्रोस, ठीक है। करंट ईयर के एंड में 18,932 के राइट रुपीज आर इन क्रोस के आपके पास पीपीईस थे। लास्ट ईयर में 17,945 के पीपीईस थे, मतलब 2,000 के करीबन इंक्रीज हुआ है, राइट। मतलब आपने शायद से परचेस किए होंगे करंट ईयर में। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, राइट, आप देख सकते हो, राइट। इन्वेंट्रीज, लास्ट ईयर के एंड में ओपनिंग स्टॉक था 7587 और इस ईयर के एंड में क्लोजिंग स्टॉक है 8038। आपको यहां से कंपैरेटिव आपको पता चलता है इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है। देन यहां पे देखो, एंड उसके बाद उन्होंने इक्विटीज एंड लायबिलिटीज लिखा है। एक्चुअली पहले इक्विटीज एंड लायबिलिटीज लिखा जाता है, बाद में असेट्स लिखा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, इट इज अ प्रेजेंटेशन, नथिंग एल्स। अब देखो उनका इक्विटी शेयर कैपिटल, लास्ट ईयर में कितना इक्विटी शेयर कैपिटल था, 1225.86। करंट ईयर में कितना है, 1229.22। तो ये जो चेंज हुआ होगा ना, उसका स्टेटमेंट होगा, ये क्यों इंक्रीज हुआ है, उसके पीछे रीजंस उन्होंने दिए होंगे। अदर इक्विटी, तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी। ये देखो उनका इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव ईयर, करंट ईयर के वैल्यूज, प्रीवियस ईयर के वैल्यूज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो आप देख सकते हो 31 मार्च 2019 में 45,784 का उनका रेवेन्यू था। करंट ईयर में 46,807 का रेवेन्यू है। मतलब इतने बुरे दिन होने के बाद भी, राइट, उनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, बिकॉज ITC is also into FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, वो तो लगते ही लगते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, भले ही होटल इंडस्ट्री बंद रहेगी फिर भी। नेक्स्ट आगे अदर इनकम्स, टोटल इनकम आ गया, फिर उन्होंने एक्सपेंसेस दिखाए, राइट। आप उनका प्रॉफिट फॉर द ईयर देखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर देखो, 31 मार्च 19 का जो ईयर एंड हुआ 18-19, उसमें 12,464 का प्रॉफिट था इन क्रोर्स, एंड करंट ईयर के एंड में 15,136 क्रोर्स का प्रॉफिट है। मतलब ये कंपनी एक्चुअली में स्ट्रांग है, लोगों ने फूकना बंद नहीं किया है पैंडेमिक की वजह से, ये समझ में आना चाहिए। ITC, राइट, सिगारेट्स पता होगा, सो एक्चुअली सिगरेट ज्यादा रेट पे राइट, ज्यादा डिमांड हुई होगी। So, लोग पैंडेमिक या कोरोना की वजह से फूकना नहीं बंद करते, उनका वो मेजर सेगमेंट है सिगारेट्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतने बुरे साल में भी ये कंपनी का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, 3,000 करोड़ से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। मतलब क्या स्ट्रॉन्ग कंपनी होगी, क्या बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा।
और क्या प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे होंगे कि इतने बुरे दिनों के बाद भी उनका राइट टॉप लाइन मतलब सेल्स एंड बॉटम लाइन मतलब नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। आगे नेक्स्ट, दिस इज चेंजेस इन इक्विटी, ये चेंजेस इन इक्विटी है। अब यहाँ पे रीजंस, अब यहाँ पे उसको ये करना मुश्किल हो जाएगा, पीडीएफ है ये सब चीजें मिलेगी। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, ठीक है। अच्छा, रिलायंस की भी बैलेंस शीट किसी ने भेजी, लेट मी चेक। डाउनलोड होनी चाहिए, मेरी इधर डाउनलोड नहीं हो रही थी। ओके गुड, ये रिलायंस की बैलेंस शीट है। देखो कंपैरेटिव में एज एट, ये करंट ईयर के वैल्यूज हैं, ये प्रीवियस ईयर के वैल्यूज है, ये कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। कंपैरेटिव मतलब क्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो हम नॉर्मली जो बैलेंस शीट लिखते हैं ना, उसके साथ करंट ईयर के वैल्यूज के साथ प्रीवियस ईयर के भी वैल्यू लिख दिए ना, वो कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो गई। व्हाट इज कंपैरेटिव प्रॉफिट लॉस अकाउंट, करंट ईयर के वैल्यूज के साथ प्रीवियस ईयर के वैल्यू लिख दे तो हो गई कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये है देखो, तो आपको समझ में आता है कि पहले कैपिटल 5000, इनके वैल्यूज किस में, क्रोर्स में रहेंगे शायद से। यस, वैल्यूज आर इन क्रोर्स। देखो आपको देख के पता चलेगा कि 5926 का कैपिटल था, बाद में वो इंक्रीज हुआ है 6339 फिगर इन क्रोर्स। सो आपको पता चलता है कैपिटल इंक्रीज हुआ है, असेट्स इंक्रीज हुए, क्या हुए ओवरऑल, समझ में आ रहा है। तो वैसे नथिंग एल्स। सो कंपैरेटिव मतलब लिख लेना यहां पे। अच्छा, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन, एक सेकंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, आईपैड की स्क्रीन शेयर करता हूं। तो चलो अब हमें कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझना है। We have to understand comparative financial statements. सिंपल है, सब कुछ दिया होगा आपको, कंपैरिजन में लिखना है। ओके यस, लेट्स सी अब क्या लिखा है, ध्यान देना। हाँ, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट हम सीखेंगे। सिंपल है, कंपेरेटिव आ गया तो कॉमन साइज अपने आप आ जाता है। सो कॉमन साइज कैश फ्लो एनालिसिस, ठीक है, ध्यान देना। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या, कंपेरेटिव स्टेटमेंट कंपेयर्स फाइनेंशियल डेटा at 2 points of time, current year and previous year, and helps in deriving the meaning and the conclusions regarding changes in the financial position and operating results. So बैलेंस शीट को लिखेंगे करंट ईयर प्रीवियस ईयर, और फिर हम ढूंढेंगे प्लस माइनस, क्या इंक्रीज हुआ है क्या डिक्रीज हुआ है, एंड हम परसेंटेज चेंज भी ढूंढेंगे, ठीक है। वैसे ही P&L को भी हम वैसे करेंगे। देन हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट करनी होती है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट करना होता है, नथिंग एल्स। आगे ठीक है, लाइक दिस। अब ध्यान देना, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वरुण कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31st March 2019 एंड 31st March 20 गिवन बिलो, ठीक है। दे हैव गिवन यू 2 साल के बैलेंस शीट, दिस इज प्रीवियस ईयर, दिस इज करंट ईयर। लायबिलिटीज प्रीवियस ईयर करंट ईयर, असेट्स, ठीक है, बैलेंस शीट 6 लाख 6 लाख 8 लाख 60 8 लाख 60, ठीक है। ध्यान देना, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। क्या बनाना है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। और इससे ही मैं कॉमन साइज भी सिखा दूंगा, ध्यान देना, कंपैरेटिव कॉमन साइज में दोनों साथ में सिखा रहा हूं, ठीक है। ऑफ वरुण कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31st March 2019 एंड 31st March 20, ठीक है। करें स्टार्ट, देखो भाई इसे लिखा हुआ है, सोर्सेस ऑफ फंड्स, राइट, देन एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। करें स्टार्ट, यस। क्वेश्चन में कॉपी कर दो, ध्यान देना।
लिखो। आई डोंट नो एग्जाम में कैसे, बिकॉज कैलकुलेटर होना चाहिए एक्चुअली इसके लिए, ठीक है, समझ लेना। दिस इज द क्वेश्चन। कॉमन साइज फॉर्मेट वही यूज करते हैं ना, यस, हर जगह पे फॉर्मेट वही यूज है, मतलब दैट इज, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे लिखो। एवरीवन, ध्यान देना, हम इसी क्वेश्चन को हम कंपैरेटिव में भी कन्वर्ट करेंगे, कॉमन साइज में भी करेंगे, ध्यान देना, ठीक है। लिख लेना यहां पे कंपैरेटिव बैलेंस शीट लिखो, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स, करंट ईयर, राइट, 31 मार्च, कितना, 31 मार्च 20, प्रीवियस ईयर 31 मार्च 19, ठीक है। फिर हम लिखेंगे नेट चेंज, एंड देन परसेंटेज चेंज, दैट्स इट। दो कॉलम आगे डाल दिए, नेट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। सबसे पहले लिखा जाएगा सबसे पहले लिखा जाएगा सोर्सेस ऑफ फंड्स, मतलब लाइबिलिटीज, मतलब लाइबिलिटी साइड, ध्यान देना, उसमें ओनर्स फंड फर्स्ट, ओनर्स फंड्स, ओनर्स फंड में क्या आने वाला है, ओनर्स फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, बराबर, लिखो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो हम इनकी सब टोटल लेंगे, ठीक है, सब टोटल ऑफ 1 सेकंड। फिर आएगा सेक्योर्ड लोन्स एंड अनसेक्योर्ड लोन्स, ये बोरोड फंड्स में आएगा, बोरोड फंड्स, उसमें आ गया सेक्योर्ड लोन, अनसेक्योर्ड लोन, ठीक है। इसकी सब टोटल लेंगे, इसकी सब टोटल लेंगे, फिर इन दोनों की ये जो सब टोटल रहेगी, इन दोनों से हमें मिल जाएगा टोटल सोर्सेस ऑफ फंड, ठीक है। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, सो दिस इज ए प्लस बी, ठीक है, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। उसके बाद हम लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, किस किस लिए अप्लाई हुआ, एप्लीकेशन ऑफ फंड, ध्यान देना, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स किस किस के लिए अप्लाई हुआ, फर्स्ट फिक्स एसेट्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, एंड बाकी एज अ वर्किंग कैपिटल होगा। वर्किंग कैपिटल क्या, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, बराबर,
तो लिखो अप्लाइड फॉर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स 1 फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। सेकंड इन्वेस्टमेंट्स, एंड थर्ड राइट वर्किंग कैपिटल। जिसमें हम लिखते हैं करंट असेट्स लेस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, working capital is C. Therefore, total application of funds A plus B plus C. A plus B plus C. लिखना स्टार्ट कर दो, चलो। करंट ईयर के कॉलम में करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर के कॉलम में प्रीवियस ईयर का। उससे होता क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमें कंपैरेटिव दो चीजें मिलती है, कंपैरिजन बिटवीन द 2 इयर्स वैल्यूज। सो कंपैरिजन करते तो करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर होना चाहिए। लिखो शेयर कैपिटल 2,50,000 3,70,000, प्री करंट ईयर 3,70,000। हाँ, गलती से इधर का उधर लिख दोगे। हाँ, ये कितना है 2,50,000। पहले ये दोनों कॉलम कंप्लीट करो, उसके बाद रिजर्व्स पहले 60 थे, अब भी 1 लाख हुए। सो टोटल ओनर्स फंड्स पहले 3,10,000 थे, पहले 3,10,000 थे, अब हुए 4,70,000। नेक्स्ट सिक्योर लोन पहले 1,60,000 था, करंट ईयर में 1 लाख है, मतलब रीपेड किया होगा आपने। आपको समझ में आना चाहिए कि आपने सिक्योर लोन रीपे किए, 60,000 के रीपे किए। अनसिक्योर्ड लोन पहले 1,40,000 थे, अब 90,000 है शायद से, या गलत लिख रहा मैं? नहीं, पहले 90 थे। अरे मैंने गलत लिखा क्या? ओके, मैंने गलत लिखा, एक सेकंड। रीपेड नहीं हुए, एक्चुअली हमने लोन लिए। अच्छा, ये बराबर है। यस, पहले 1 लाख थे, बाद में 1,60,000 हुए। सॉरी, पहले 1 लाख थे, ओपनिंग में 1 लाख थे, क्लोजिंग में 1,60,000 है, मतलब हमने लोन लिया है। ओके, वी हैव टेकन लोन। नेक्स्ट, उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन पहले 90 थे, अब 1,40,000 है। पहले 90 थे, अब 1,40,000 इंक्रीज हुए, मतलब आपने लोन लिया है। साल भर में आपने हेवी बोरोइंग्स की है, मैं बोल सकता हूं कि आपकी बोरोइंग्स इंक्रीज हुई है साल भर में। ये तो कंपेरेटिव समझाता है आपको। सो अभी आपके बोरोड फंड 3 लाख है, पहले 1,90,000 थे, तो योर बोरोड फंड्स हैव इंक्रीज्ड। सो व्हाट इज योर टोटल सोर्सेस ऑफ फंड्स? 4,70,000 प्लस 3 लाख, 7,70,000। व्हाट इज योर तो इनिशियल में कितना था? 4 लाख 5 लाख। इसको चाहे तो डबल अंडरलाइन करते रहो। प्रेजेंटेशन इज योर स्किल। सो सोर्सेस ऑफ फंड्स हैव इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख टू 7,70,000। सोर्सेस ऑफ फंड्स हैव इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख टू 7,70,000। चलो एप्लीकेशन 3,50,000 टू 5,70,000 हुए, 3,50,000 टू 5,70,000। सो आपने फिक्स एसेट परचेस किए साल भर में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स 1,20,000 टू 1,70,000 हुए, इन्वेस्टमेंट भी आपने की। नहीं, उसके बाद करंट असेट्स 1,30,000 से 1,20,000 हुए, 1,30,000 से 1,20,000 हुए। नहीं, उसके बाद करंट लाइबिलिटीज 1 लाख से 90,000 हुए, मतलब लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज आपने रिपे किए होंगे साल भर में।
डिक्रीज हुए, एंड देयरफॉर योर नेट वर्किंग कैपिटल ओपनिंग में 30,000 का था, अब भी 30,000 का ही शायद से। व्हाट इज योर एप्लीकेशन? 5,70,000 प्लस 1,70,000 प्लस 30, 2 लाख आ जाएगा, 2 लाख प्लस 5,70,000 7,70,000। एप्लीकेशन ऑफ फंड इज 7,70,000। देखो 7,70,000 सोर्सेस ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ द फंड इज ऑल्सो 7,70,000। अब ये कितना आ जाएगा? 3,50,000 प्लस 1,50,000, 4 लाख 5 लाख। टैली होना चाहिए आपका। सोर्सेस ऑफ फंड्स शुड टैली विथ एप्लीकेशन ऑफ द फंड्स। हो गया टैली ये वाला। दिस इज टोटल सोर्सेस ऑफ फंड्स एंड दिस इज टोटल एप्लीकेशन ऑफ द फंड्स। ये तो हमने कल के लेक्चर में सीखा था, बराबर, वर्टिकल बैलेंस शीट। अब हमें सीखना है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। वर्टिकल बैलेंस शीट, करंट ईयर की वर्टिकल बैलेंस शीट, प्रीवियस ईयर की वर्टिकल बैलेंस शीट। कंपैरेटिव में क्या किया? दोनों साथ में लेके आ गए, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। और फिर हम क्या करेंगे? नेट चेंज ढूंढेंगे। नेट चेंज मतलब एब्सोल्यूट चेंज, मतलब करंट ईयर वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू। नेट चेंज क्या होता है? करंट ईयर वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू। सो देखते हैं, कैपिटल 2,50,000 से 3,70,000 हुआ है। कैपिटल इज इंक्रीज्ड बाय 1,20,000, मतलब आपने कैपिटल बोरो किया है 1,20,000 का। रिजर्व्स एंड सरप्लस हैव इंक्रीज, मतलब प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज 40,000। प्रॉफिट्स 40,000 से इंक्रीज हुए, इसलिए आपके ओनर्स कैपिटल, ओनर्स फंड्स ओवरऑल 1,60,000 से इंक्रीज होने चाहिए। तो चेक करो, 3,10,000 हैव बिकम 4,70,000, मतलब इट इज इंक्रीज बाय 1,60,000। सो ओनर्स कैपिटल 1,60,000 से इंक्रीज हुआ है। ओनर्स फंड्स इनटू बिजनेस हैव इंक्रीज बाय 1,60,000। ओनर्स का कंट्रीब्यूशन बिजनेस में इंक्रीज हुआ है, इट इज गुड साइन। ओनर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, इट इज गुड साइन। सो 1,60,000 का बाइफरकेशन क्या है? कैपिटल 1,20,000 की वजह से इंक्रीज हुआ है, कैपिटल 1,20,000 से, और रिजर्व एंड सरप्लस 40 से। आप लोन्स भी ले रहे हो, 1 लाख से आपका 1,60,000 सिक्योर्ड लोन्स हुए, तो साल भर में आपने 60,000 के लोन्स लिए। आपने अनसेक्योर्ड लोन्स भी बोरो किए 50,000। ओवरऑल यूर बोरोइंग्स 1,10,000 से इंक्रीज होनी चाहिए। यस, परफेक्ट। 1,90,000 has become 3 lakhs। सो बोरोइंग्स 1,10,000 से इंक्रीज हुई आपकी। ओनर्स फंड्स इंक्रीज बाय 1,60,000, borrowed funds increased by 1,10,000. Total increase in the sources of funds should be 1,60,000 plus 1,10,000, 2,70,000. Yes, 5 lakhs has become 7,70,000, 2,70,000. समझा चेंज क्या है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अब देखते हैं असेट्स। 3,50,000 के फिक्स असेट थे, साल के एंड में 5,70,000 के, मतलब इंक्रीज हुआ है, प्लस 2,20,000 से आपने फिक्स असेट इंक्रीज किया। इन्वेस्टमेंट भी आपने 50,000 से इंक्रीज किया, 1,20,000 has become 1,70,000, बराबर। करंट असेट्स 1,30,000 से 1,20,000 हुए, करंट असेट्स हैव डिक्रीज बाय 10,000। करंट लायबिलिटीज 1 लाख से 90,000 हुए, current liabilities have also decreased by 10,000. Therefore, current, yeah, right. So overall change 0. Try to understand. Current assets decreased by 10,000. Current liabilities also decreased by 10,000. Therefore, net working capital में कोई change नहीं है. 30,000 has remained 30,000. ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट्स में देखो, आपके सोर्सेस ऑफ फंड 2,70,000 से इंक्रीज हुए, साल भर में सोर्सेस ऑफ फंड्स हैव इंक्रीज बाय 2,70,000। उसमें से 2,20,000 फिक्स एसेट में डाले, 50,000 इन्वेस्टमेंट में डाले, वर्किंग कैपिटल में 0 रुपीज डाले, 2,70,000 का बाइफरकेशन। ऐसे आप देख सकते हो, तो आपका समझेगा यार साल भर में हमने कितने के इन्वेस्टमेंट्स किए।
राइट। साल भर में हमने 2,70,000 के फंड्स रेज किए, साल भर में हमने 2,70,000 के फंड्स रेज किए, उसका एप्लीकेशन क्या है 2,20,000 फिक्स एसेट के लिए, 50,000 इन्वेस्टमेंट के लिए, वर्किंग कैपिटल में 0 है, 30,000 हैज रिमेन 30,000। तो आप चाहिए तो 2,20,000 प्लस 50 प्लस 0 ABC। Application of funds have also increased by 2,70,000। समझा? Now percentage change. How to find out percentage change? Percentage change is found out. Percentage change is found out, right? Net change divided by previous year value. मतलब कैन आई से 2,50,000 का कैपिटल 3,70,000 हुआ है, मतलब कैपिटल 1,20,000 से इंक्रीज हुआ है। सो 1,20,000 चेंज विथ रिस्पेक्ट टू 2,50,000, तो कितना परसेंटेज आएगा बोलो? मुझे आपसे आंसर चाहिए। कैलकुलेट, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, यू कैन यूज कैलकुलेटर। कैन आई से 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। So can I say capital is increased by 48%? Capital is increased by 48%? Yes, capital is increased by 48, मतलब आपने डबल ऑलमोस्ट हाफ कैपिटल कर दिया आपने। पहले जितना था ना, अगर 100 रुपीज का कैपिटल था, अब 148 रुपीज का कैपिटल हुआ है। ऐसे देखो 60,000 के आपके रिजर्व थे, दे हैव बिकम 1 लाख, मतलब इंक्रीज इज 40,000। 40,000 डिवाइडेड बाय बेस 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100, बोलो कितना आएगा रे? 40,000 डिवाइडेड बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100, बोलो 66.67%। दे हैव इंक्रीज बाय 66.67%। अच्छा, इसकी सब टोटल नहीं लेनी है तो सब टोटल लेना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है? लाइन ऑन लाइन चेक करें, लाइन ऑन लाइन चेक करें, ठीक है? मतलब ओवरऑल योर ओनर्स फंड्स हैव इंक्रीज बाय 1,60,000 विथ रिस्पेक्ट टू 1,60,000 विथ रिस्पेक्ट टू, राइट? 3,10,000 ले लो, कितना आएगा रे? 1,60,000 डिवाइडेड बाय 3,10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज 51.61%। लाइन ऑन लाइन कंपेयर करना है, सब टोटल मत लेना, नहीं तो सब टोटल लगा तो गलत होगा। आपको लाइन ऑन लाइन कंपेयर करना है कि आपके दिस इज व्हाट इज ए, व्हाट इज ए इज सोर्स टोटल ओनर्स फंड्स। ओनर्स फंड हैव इंक्रीज बाय 1,60,000, पहले 3,10,000 थे, अब वो 1,60,000 से इंक्रीज होकर 4,70,000 हुए, तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 3,10,000। अच्छा बोलो सेक्योर्ड लोन कितने से इंक्रीज हुए? सेक्योर्ड लोन 60,000 से इंक्रीज हुए, 1 लाख हैज बिकम 1,60,000, मतलब वो 60% से इंक्रीज है, बराबर? वो 60% से इंक्रीज है। अनसेक्योर्ड लोन 90,000 से 1,40,000 हुआ है, सो 50,000 इंक्रीज डिवाइडेड बाय 90,000 बेस मल्टीप्लाई बाय 100, 55.55% इंक्रीज है, तो प्लस में लिख रहा हूं, या 56%, ठीक है? सो ओवरऑल योर बोरोड फंड्स 1,90,000 से 3 लाख हुए, मतलब 1,10,000 से इंक्रीज हुए, 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1,90,000, 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1,90,000, वो आ रहा है 57.89%। So can I say your total sources of funds 5 लाख से 7,70,000 हुए, मतलब कितने परसेंट से इंक्रीज हुए? 2,70,000 से इंक्रीज हुए, डिवाइडेड बाय टोटल सोर्स ऑफ फंड्स इस साल में 2,70,000 का जनरेट हुआ है, डिवाइडेड बाय 5 लाख, 54%। आगे फिक्स्ड एसेट्स, ध्यान देना, फिक्स्ड एसेट्स, यस फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हुए, कितने से इंक्रीज हुए? 2,20,000 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू 3,50,000, 62.86%।
62.86%, मतलब फिक्स एसेट ऑलमोस्ट 62.86% से आपने इंक्रीज कर दिया प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर में आपके इन्वेस्टमेंट 1,20,000 के थे, करंट ईयर में 1,70,000 के हैं, तो 50,000 का इंक्रीज हुआ है, मतलब ओवरऑल कितना परसेंट इंक्रीज है? 50,000 डिवाइड बाय 1,20,000, 41.61%, 67%। वर्किंग कैपिटल देखते हैं, करंट असेट्स हैव डिक्रीज बाय 10,000, 10,000 डिवाइडेड बाय 1,30,000, so they have decreased by some 7%, decreased by minus 7.69%, decrease in current asset by 7.69%. Even your right current liabilities have decreased from 1 lakh to 90,000, 10,000 से decrease हुए, divided by base previous year 1 lakh, they have decreased by 10%. Your working capital पहले 30,000 था, बाद में भी 30,000 है, 0% से चेंज हुआ, ठीक है। देन आगे, देन यहाँ पे ये क्या हुआ है, 5 लाख के एप्लीकेशन ऑफ फंड्स 7,70,000 हुआ है, 2,70,000 से एप्लीकेशन ऑफ फंड्स इंक्रीज हुआ है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर ऑफ 5 लाख, वो 54% से एप्लीकेशन ऑफ फंड इंक्रीज हुआ है। दैट्स इट। क्या किया मैंने, आई एडेड 2 कॉलम्स, एक मैंने नेट चेंज का कॉलम डाल दिया, व्हाट इज द नेट चेंज, करंट ईयर वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू, एंड फिर एक और कॉलम डाल दिया परसेंटेज चेंज। सो जो नेट चेंज आता है डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, यू विल गेट परसेंटेज चेंज। दैट्स इट, हो गया। ये हो गई कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट कौन सी होगी, कंपैरेटिव। ये बैलेंस शीट हो गई कंपैरेटिव। लेट मी चेक, ये आ गया आपकी कंपैरेटिव बैलेंस शीट। देखो कैसे लिखा, देखो इसको उन्होंने नेट चेंज की जगह वर्ड यूज किया एब्सोल्यूट चेंज, और यहां पे यूज किया परसेंटेज चेंज। उन्होंने करंट ईयर को पहले लिया है, प्रीवियस ईयर को पहले लिया है, करंट ईयर को नेक्स्ट लिया। आपको जैसे लिखना है वैसे, कोई फर्क नहीं, बट करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में कंफ्यूज मत होना। फॉर्मूला फॉर परसेंटेज चेंज इज एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। और ये हो गया आपकी कंपैरेटिव बैलेंस शीट। क्या क्या डिफिकल्टी कंपैरेटिव बैलेंस शीट करना, क्या डिफिकल्टी कंपैरेटिव बैलेंस शीट करना। अगर आप यहां पे देखो, एक सेकंड, समझा कंपैरेटिव बैलेंस शीट, यस और नो? अरे कंपैरेटिव बैलेंस शीट समझा क्या, यस और नो एवरीवन? 2 कॉलम डालने, कंपैरिजन 2 वैल्यूज में होती है, तो हमारे हर आइटम के 2 वैल्यूज होने चाहिए, करंट ईयर की वैल्यू, प्रीवियस ईयर की वैल्यू, और फिर आगे डालना है एब्सोल्यूट चेंज, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज है तो प्लस में लिखो, डिक्रीज है तो माइनस में लिखो, एंड फिर हम परसेंटेज चेंज ढूंढेंगे। दैट्स इट, फिर हम परसेंटेज चेंज ढूंढेंगे। ओके, नीचे कहां पे तो क्वेश्चन रहेगा। दिस इज द क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट of Amar Traders as on 31st March 18 and 31st March 19, previous year, current year, prepare comparative balance sheet। ध्यान देना कौन सा आइटम किस में जाएगा, कैपिटल ओनर्स फंड्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस ओनर्स फंड, लोन्स बोरोड फंड्स,
फिक्स असेट्स एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, करंट असेट्स माइनस क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आर करंट लाइबिलिटीज ना, ये दोनों माइनस करके मिलेगा वर्किंग कैपिटल एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, एंड फिर हमें एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज डालना है। करें स्टार्ट, चलो लिखो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा, दैट्स इट। कंपेरेटिव बैलेंस शीट, ठीक है। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, चलो हम पहले प्रीवियस ईयर लिखेंगे। प्रीवियस ईयर 31 मार्च 18, करंट ईयर 31 मार्च 19, एब्सोल्यूट चेंज, प्रीवियस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, and then percentage change. चार कॉलम्स। सबसे पहले सोर्सेस ऑफ फंड्स, सोर्सेस ऑफ फंड को दो में डिवाइड करेंगे, राइट। फर्स्ट ओनर्स फंड्स, देखो मैं ये क्यों लिख रहा हूं जानबूझ के, तो मेरी प्रैक्टिस हो जाए, मैं भूल ना जाऊं इसलिए। ओनर्स फंड, उसमें शेयर कैपिटल, क्या शेयर कैपिटल लिखा है ना, या जस्ट कैपिटल है, कैपिटल, ओके नो इश्यू, कैपिटल। दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस, यहां पे आपको मिलेगा टोटल ओनर्स फंड, जिसको नेटवर्थ भी बोलते हैं, नेटवर्थ भी बोलते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद सेकंड आएगा बोरोड फंड्स, उसमें आएगा लोन्स, ठीक है, वही टोटल रहेगा, देयरफॉर टोटल बोरोड फंड्स। उसके बाद हमें मिलेगा देयरफॉर टोटल सोर्सेस ऑफ फंड, in a, right, suppose you are given this as a this as a b, so a plus b, ठीक है। उसके बाद अब हम लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ध्यान देना, सिंपल सिंपल चीज है। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, फंड्स यूज फॉर 1 फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट 0 लिख दो, है ही नहीं बट आप लिख सकते हो, यू कैन इग्नोर इन्वेस्टमेंट्स, मैं लिख देता हूं, बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। फिक्स असेट में हो सकता है बिल्डिंग लिखा होगा, मशीनरी लिखा होगा, व्हीकल्स लिखा होगा, आप नीचे लिख सकते हो एक एक और उसकी सब डिटेल लेने की, ठीक है। देन उसके बाद वर्किंग कैपिटल,
What is working capital? Current assets less current liabilities. This is A, this is B, this is C. Therefore, total application of funds हो गया. A प्लस बी प्लस सी. देखो फॉर्मेट याद रह जाएगा. कैपिटल 60 था, बाद में 70 हो गया. 60 था, 72,000 हो गया. Therefore, absolute change is positive 12,000. इंक्रीज हुआ है. परसेंटेज चेंज लिखो. 12,000 डिवाइडेड बाय 72 कैलकुलेटर पे. 12,000 divided by 72 multiply by 100. It is increased by 16.67%. Okay, capital increased by 16.67%. Previous year के with respective. Reserves 24,000 के 30,000 हुए. So there is an increase of 6,000, right? ओके मैंने गलत परसेंटेज के लिए बेस किया. एक्सट्रीमली सॉरी, वो गलत है. वो 12,000 विथ रिस्पेक्ट टू 60 होना चाहिए. गलत लिया मैंने. 12,000 डिवाइडेड बाय 60. 20% से इंक्रीज हुआ है. सिमिलरली 24,000 के रिजर्व 30,000 हुए तो 6,000 से इंक्रीज हुआ है. 6,000 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर 24,000, वो 25% से इंक्रीज हुआ है. वो 25% से इंक्रीज हुआ है. ओवरऑल ओनर्स फंड्स 84,000 थे, दे हैव बिकम 1,02,000. सो ओवरऑल इंक्रीज हुए हैं 20,000 से 18,000 से. सो 18,000 से इंक्रीज हुए विथ 84,000 के ओनर्स फंड्स 1,02,000 हुए हैं. तो 18,000 से इंक्रीज हुए डिवाइडेड बाय 18,000 डिवाइडेड बाय 84,000 मल्टीप्लाई बाय 100. 21 पॉइंट इंक्रीज बाय 21.42% या 43% राउंड ऑफ करके. नेक्स्ट लोन है ही नहीं सर, लोन है ही नहीं अरे है वो नीचे हुआ है. 34,000 के लोन्स 51,000 हुए. 51,000 हुआ मतलब लोन इज इंक्रीज बाय 17,000. आपने 17,000 बोरो किए साल भर में. 17,000 बोरो किए विथ रिस्पेक्ट टू 34,000. सो इंक्रीज बाय 50%. 50% से बोरोइंग्स इंक्रीज हुई आपकी. टोटल बोरोड फंड इज 34,000 इनिशियली थे, अब वो 51,000 हुए. 17,000 का इंक्रीज है. आप देख सकते हो 50% से वो इंक्रीज हुआ. आगे ओवरऑल सोर्सेस ऑफ फंड 84,000 प्लस 34,000 1,18,000. अब दे हैव बिकम 1,02,000 प्लस 51,000 1,63,000. ओवरऑल इंक्रीज इज 33,000. 33 या 35. ओवरऑल इंक्रीज इज 35,000. योर सोर्सेस ऑफ फंड जो इनिशियली 1,18,000 थे लास्ट ईयर में, इस ईयर में वो 1,53,000 हुए हैं. सो सोर्सेस ऑफ फंड्स हैव इंक्रीज बाय 35,000. सो 35,000 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर 1,18,000. 29.67% ऑलमोस्ट 29.66% से इंक्रीज हुआ है सोर्सेस ऑफ फंड्स. ठीक है, लाइन ऑन लाइन चेक कर लेगा. व्हाट अबाउट फिक्स असेट्स? 1,20,000 के फिक्स असेट 1,50,000 हुए. 30,000 से इंक्रीज हुआ. एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज ऑफ 30,000. So 30,000 divided by
1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 25% से इंक्रीज हुआ. इन्वेस्टमेंट नो चेंज, इन्वेस्टमेंट थे ही नहीं. व्हाट अबाउट वर्किंग कैपिटल? करंट असेट 28,000 से 27,000 हुआ. 28,000 से 27,000 हुआ. So can I say they have decreased by 1,000? So 1,000 से decrease हुए 1,000 divided by 28,000. They have decreased by 3.57%. Current assets have decreased in the current year by 3.57%. What about current liabilities? Current liabilities 30,000 थे 24,000 हुए, डिक्रीज हुए. 30,000 थे 24,000 हुए. करंट लाइबिलिटीज ऑफ डिक्रीज, आपने रिपेड किए होंगे 6,000. 6,000 से डिक्रीज किए विथ रिस्पेक्ट टू 30,000 प्रीवियस ईयर. एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100. 20% से डिक्रीज हुआ. करंट लाइबिलिटीज इन करंट ईयर हैव डिक्रीज बाय 20%. तो वर्किंग कैपिटल प्रीवियस ईयर में कितना था? निगेटिव 2,000 का वर्किंग कैपिटल था. निगेटिव 2,000 का वर्किंग कैपिटल था. करंट ईयर में पॉजिटिव 3,000 का वर्किंग कैपिटल है. तो वर्किंग कैपिटल निगेटिव 2,000 से पॉजिटिव 3,000 हुआ है, मतलब आई थिंक इट इज इंक्रीज बाय 5,000. निगेटिव 2,000 से पॉजिटिव 3,000 हुआ है, तो इट इज इंक्रीज बाय 5,000. सो इट हैज बिकम 5,000 डिवाइडेड बाय, it has become 5,000 ना, with respect to negative 2,000. How can I find? पहले निगेटिव 2,000 था ना, पहले निगेटिव 2,000 था, अब वो पॉजिटिव 5,000 हुआ है. तो कितना बोलोगे आप? $5,000 divided by 2,000 multiply by 100, 250% से इंक्रीज हुआ है. 250% से इंक्रीज हुआ है, बराबर है ना. 2,000 निगेटिव हैज बिकम राइट 3,000 पॉजिटिव, मतलब 5,000 से इंक्रीज है. आगे 250% से इंक्रीज हुआ है. व्हाट अबाउट योर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स? 1,20,000 plus 0 minus 2,000, 1,18,000. Tally why 1,18,000? Yes. हाँ सर, tally why 1,18,000? ना नहीं. Next 1,50,000 plus 0 plus 3,000, 1,53,000. Tally हुआ सर. So your application of fund 1,18,000 से 1,53,000 हुआ है, it is increased by 35,000. Overall percentage increase है 29.66. This is your answer. लिखो. अगर फॉर्मेट समझ में आ गया ना, फॉर्मेट समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है. ठीक है, समझा या नहीं समझा? सो योर होमवर्क इज, आपका होमवर्क रहेगा, अच्छा ये मैं करूंगा, दिस इज योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 3 इज द होमवर्क.
ये एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है, कैपिटल सोर्सेस ऑफ फंड्स है, करंट एसेट एप्लीकेशन ऑफ फंड्स वर्किंग कैपिटल के लिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस इज सोर्सेस ऑफ फंड्स, ओनर्स फंड, लोन सोर्सेस में बोरोड फंड, करंट लाइबिलिटीज विल बी हम एप्लीकेशन में माइनस करेंगे वर्किंग कैपिटल के लिए। योर एसेट्स टोटल कितना होगा ध्यान देना, इक्वल होना चाहिए 1,20,000 प्लस 28 1,48,000 1,48,000 एसेट साइड ओवरऑल अगर नॉर्मल बैलेंस शीट करते तो 1,48,000 होगी एसेट साइड, लायबिलिटी साइड भी उतनी होनी चाहिए 60 प्लस 24 60 प्लस 24 84 84 प्लस 30 114 प्लस 34 140 यस टैलेंट इंफॉर्मेशन है, कोई इश्यू नहीं। दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो होमवर्क, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 इज होमवर्क, मैं क्वेश्चन नंबर 2 कल करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज होमवर्क, यू हैव टू सॉल्व इट एंड यू हैव टू शेयर द आंसर्स ऑन द ग्रुप। ठीक से सॉल्व करो और ग्रुप पे शेयर करना आंसर, आई विल गो थ्रू देम, ठीक है। किसी के डाउट्स है? अरे पेज नंबर है 377। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आर द होमवर्क, 3 एंड 4 आर द होमवर्क, करना है आपको, ठीक है। और दोनों इंफॉर्मेशन टैलीड है, ऑब्वियसली दे विल गिव टैलीड इंफॉर्मेशन, डोंट वरी एट ऑल। क्वेश्चन 2 मैं कल करूंगा, ठीक है, यस। किसी के डाउट्स बिफोर वी एंड फॉर द डे? अरे समझ में आ रहा है क्या क्या सिखा रहा हूं, यस और नो? अरे यस और नो? फॉर्मेट याद रखना, ठीक है। बैलेंस शीट का ये वाला फॉर्मेट एंड इनकम स्टेटमेंट का ये वाला फॉर्मेट, बस। बाकी कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज टाइम पास है, वो कैलकुलेशन है बस, ठीक है। चलो आज हम यहाँ पे रुकते हैं, थैंक यू। कल सेम टाइम लेक्चर रहेगा।